Hello students, this is again Dr. Nimulangshu here. So today we are going to discuss, we have finished up till our last day discussion. We have finished up Lewis language theory of covalent bonding, that is all this polarity, dipole moment, etc., how the covalent bonds are formed. So now today we are going to discuss a new theory of covalent bonding, that is called valence bond theory. That is called valence bond theory. Okay. So valence bond theory, or we can say it also as VBT, valence bond theory. Okay. So now valence bond theory is based basically on the principle that the valence electrons are involved in bonding. Valence electrons are involved in bonding. For example, if we take if this theory also take into consideration, क्या कहता है? Orbital consideration, orbital concept. This theory takes into consideration the orbital concept of the atoms. Okay. Now this theory can also be stated as orbital concept of covalent bond. Orbital concept of covalent bond, or we can also say it as the concept of covalent bond in terms of electron spin. The concept of concept of covalent bond in terms of electron spin of the atoms. In terms of electron spin of the atoms. So we will read. We will read in our school days how the shapes of orbital of S, P, D are there. We have we have 4 types of orbitals, that is S orbital, P orbital, D orbital and F orbital. So S orbital, that we will read in atomic structure chapter once again. S orbital is spherical in nature. This is S orbital, which is spherical in nature. And this is P orbital. So P orbital is directed towards the 3 axes of Cartesian coordinate. So this is Px, this is Py. That will, don't be panic, we will discuss in atomic structure. Okay. So this is P orbital, Py, and this is Pz orbital. Okay. So this S orbital is spherical shape. S orbital is spherical shape, and P orbital is dumbbell shape. This is called dumbbell. आप लोगों ने देखा होगा जिम में डम्बल होता है, so डम्बल की जैसा शेप है. Okay, so this is how the shapes of S and P orbital are. Now let us see how this, using this orbital concept and how using the concept of electron spin, we can explain the formation of a covalent molecule. So let us see the formation of H2 molecule. क्या देखते हैं हम लोग? चलो अभी देखते हैं formation of H2 molecule. So देखो ये कैसा होता है? This is formation of H2 molecule. So we know that each atom is having atomic number 1, that is 1s1. So it is having only s orbital. So spherical shape, s orbital is there. So this is 1 plus, and this region is where the probability density of finding electron is maximum. So this region, it has 1 electron in its orbital plus another s orbital of another hydrogen atom. So this is nucleus. This is the region where the probability of finding electron is maximum, and this here the electron will be like this. Okay, so now these two will combine. These two will combine to give this type of bond. This is one H and this is another H. Now after combining, we will also read in atomic structure that the two electrons after combining cannot remain parallel. It cannot remain parallel. This is called parallel representation of electron, and this is called opposite representation of electron. So the two electrons cannot remain parallel, because if one electron have
clockwise spin, another electron will have anti-clockwise spin. अगर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है अबाउट इज ओन एक्सिस, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा. ओके, सो here with these two electron will stay like this. This is one electron from one hydrogen, this is another electron from another hydrogen. Okay, so now this has been formed. Also we can represent it in terms of electron spin like this s orbital. जैसे हम लोग हर समय एग्जाम में क्या, it is not possible to draw the structures like this. Okay, because when you go to complicated molecule, जब भी हम कुछ बड़ा मोलिक्यूल लेंगे तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर देना मतलब संभव नहीं होगा. तो तब हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. देखो कैसे होता है. सो दिस इज वन एस ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, दिस इज अनदर एस ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम. दिस इज अनदर एस ऑर्बिटल ऑफ वन एस ऑर्बिटल of hydrogen atom. Okay, now these two will combine to give 1s2 orbital of hydrogen molecule, to give 1s2 orbital of hydrogen molecule. और जैसा कि मैंने बोला है कि the two electron cannot remain parallel, it will have opposite spin. So this is one, ऐसा इलेक्ट्रॉन रहेगा. so ये क्या बनता है, 1s2 orbital of H2 molecule, 1s2 orbital of H2 molecule. So next हम लोग देखेंगे कि कैसा और भी molecules फॉर्म हो रहा है, जैसे कि F2 molecule, HF molecule, O2 molecule, N2 molecule, etc. etc. Okay, so let's see how it happens. So formation of next is F2 molecule. Formation of F2 molecule. Now we will क्या करेंगे, हम लोग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से ड्रॉ नहीं करेंगे. अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन से ड्रॉ करेंगे. क्योंकि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ऐसा फिगर बनाना और बड़ा फिगर बनाना, क्योंकि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये सब बहुत कुछ है ना लफड़ा. सो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल. सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9. सो कितना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2px2 2py2 and 2pz1. okay, so here is one fluorine atom. इसका है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. इसका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2. 2px 2py 2pz में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. 2py में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है. दूसरा है और एक फ्लोरीन, जैसे ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p. सॉरी, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिखे 2px 2py 2pz. और दूसरा फ्लोरीन जब आएगा तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो 1s2 का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और ये 2s का 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो ऐसा है कि ये फ्लोरीन पे भी 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. सो 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके, एंड 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये दो, अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. और एक ऑर्बिटल में 2 के ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं कर सकता है. ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन इफ दे कंबाइन दिस विल बिकम 4 इलेक्ट्रॉन. सो दिस विल नॉट कंबाइन. एंड दूसरा क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो और दूसरा बात है कि ये 2s का ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन करता है तो कैसे होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि नामुमकिन है, which is next to impossible, because we should have only 2 electrons in an orbital. okay, नेक्स्ट है कि ये 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है.
पॉसिबल नहीं है। 2p में दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जाके पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे इस पीजेड में सॉरी दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हमारा ये पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मतलब ये दो कंबाइन करे। ओके, सो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, लेट्स सी कैसे होता है कंबाइन। सो आई एम नाउ गिविंग इट इन डिफरेंट कलर्स, सो देखो कैसे होता है कंबाइन। ऐसा 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 ऐसा, ये दो कंबाइन हो जाएगा। ओके, ये दो कंबाइन हो जाएगा। सो क्या बनेगा, इस F का एक इलेक्ट्रॉन और इस F का एक इलेक्ट्रॉन। सो वी हैव सिंग, और हमको पता है कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहता है। सो ये बन जाएगा F2 मॉलिक्यूल, ये बन गया हमारा F2 मॉलिक्यूल। ओके, नाउ we will see the formation of HF molecule. Okay, so let's see how it forms, कैसे बनता है देखते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि हाइड्रोजन में 1s में ओनली एक इलेक्ट्रॉन है। So now we will see how this forms. So this is formation of HF molecule. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे थे। H2 मॉलिक्यूल डायटोमिक है क्योंकि दो न्यूक्लियस सेम है। F2 मॉलिक्यूल डायटोमिक है क्योंकि दो न्यूक्लियस सेम है। सिमिलरली ऐसा होगा Cl2 मॉलिक्यूल। ओके, सिमिलरली ऐसा होगा O2 मॉलिक्यूल। अभी हम लोग देखते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होने से क्या होता है, और क्या होता है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होने से क्या होता है। पहले हम लोग देखते थे डायटोमिक, लेकिन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो न्यूक्लियस सेम है। अभी हम देखेंगे कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होने से कैसा फॉर्म होता है। ओके, सो वी हैव HF मॉलिक्यूल। सो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सो 1s1, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। तो क्या होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, दिस इज 1s। एंड फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का कितना है 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 1s। दिस इज 2s में दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो दिस इज 2s। और 2p x y z में भी 2px में दो इलेक्ट्रॉन है, 1 2। 2py में दो इलेक्ट्रॉन है, 1 2। और 2pz में दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो दिस इज 2px2, 2py2 एंड दिस इज 2pz। सो ये दो और ये एक मिलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 हो जाएगा। ये और ये मिलना भी पॉसिबल नहीं है, 3 हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये दो और ये एक पॉसिबल नहीं है, ये दो एक पॉसिबल नहीं है, ये दो मिल सकता है। तो ठीक है, हम लोग उसको दिखाने के लिए इसको हम थोड़ा इस तरफ लिखेंगे। इसे लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s2 है, हाइड्रोजन का 1s1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1s1 इलेक्ट्रॉन है। सो कैसा बनेगा अभी देखो मेरे बच्चों, कैसा बनेगा अभी इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहा है क्लोरीन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक ही बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो वी कैन हैव दिस लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो उसको हम थोड़ा अलग से लिख रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जो ये बन गया हमारा HF molecule। ओके, so this is how HF molecule is formed. Next you will see formation of O2 molecule। ओके, so O2 molecule का देखते हैं हम लोग कैसा फॉर्म होता है। So
O2 molecule कैसा फॉर्म हो रहा है देखते हैं. So this is formation of O2 molecule. Okay. So this is O2 molecule. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8. 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन का भी है 8. 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. ओके. सो कैसा हो रहा है देखो. अभी एक ऑक्सीजन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके. और 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है. 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है. और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके. दूसरा ऑक्सीजन का भी सेम ही है 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन. 2px में क्या हो रहा है कि 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. ये दूसरा ऑक्सीजन है. तो 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है. 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो अभी क्या होगा. अभी ये एक इलेक्ट्रॉन जो है सभी ऑक्सीजन का ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है. तो अभी क्या होगा ये सभी ये दो इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइन करेगा. तो बॉन्ड में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आएगा. ओके. सो दैट इज व्हाई वी हैव OO डबल बॉन्ड. दैट इज व्हाई वी हैव OO डबल बॉन्ड. ओके. नेक्स्ट इज formation of H2O molecule. Okay. So formation of H2O molecule. तो देखते कैसा होता है H2O molecule का फॉर्मेशन. H2O molecule भी है heteroatomic polyatomic molecules. So formation of H2O molecule. Okay. So हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1s. एटॉमिक नंबर है 1s1. और ऑक्सीजन का है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. लेकिन हाइड्रोजन 2 है मेरे बच्चों. अभी ध्यान करना हाइड्रोजन 2 है. तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे बैठेगा. उसका कॉन्फ़िगरेशन लेके ऑक्सीजन यहाँ पे बैठेगा. जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है. ओके. और 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है. 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है. 2py में 1 इलेक्ट्रॉन. 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन. और हाइड्रोजन का कितना है 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन है. और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है उसका और 1 इलेक्ट्रॉन है. ओके. सो दिस विल कंबाइन नाउ. दिस विल कंबाइन नाउ लाइक दिस. ओके. दिस विल कंबाइन नाउ लाइक दिस. ये इसमें भी लेगा. ये लेगा. ये हो जाएगा. तो कैसा हो रहा है ये ऑक्सीजन है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. ओके. तो ऑक्सीजन में हम लोग देखा था कि लीविस लैंग्वेज थ्योरी में 2 लोन पेयर आता है. ये 2 लोन पेयर आता है. ओके. सो ऐसा रहेगा. ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन का ऐसा रहेगा. So this is formation of H2O molecule. Like this, I think you can do homework. Is formation of, I think this concept. अभी ये concept मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये हो गया, मालूम हो गया कि कैसे ड्रॉ करना है. सो फॉर्मेशन ऑफ ये होमवर्क है तुम लोगों का. आई हैव गिवन माय फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर. यू कैन कॉन्टेक्ट मी. सो ये है फॉर्मेशन ऑफ NH3 मोलिक्यूल. वो ये होमवर्क है तुम लोगों का. फॉर्मेशन ऑफ N2 मोलिक्यूल एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड फॉर्मेशन ऑफ CH4 मोलिक्यूल. ये 3 मोलिक्यूल मैं तुम लोग को होमवर्क के बतौर पर दिया है. सो तुम लोग देखना कि
कैसे NH3 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, कैसे N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये हम सबको पता है क्योंकि हम लोग लिविस लैंगमुइर थ्योरी में पढ़ा है। और CH4 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं जैसे कि ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। देखो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। s ऑर्बिटल किसी केस में हम लोग देखा है कि s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि ये ऑर्बिटल जब ओवरलैप हो रहा है तो कैसा कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसा कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहा है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्बिटल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ओके, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। ओके, नाउ देखो s ऑर्बिटल ऐसा है, s ऑर्बिटल ओके, ये और ऐसा है p ऑर्बिटल, ऐसा है हमारा p ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हेड ऑन कोलिशन कर सकता है, हेड ऑन कोलिशन कर सकता है। s ऑर्बिटल हेड ऑन कोलिशन कर सकता है, मतलब ऐसा कोलिशन, ऐसा कोलिशन, मुंह से मुंह का कोलिशन। ओके, और p ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल के साथ भी हेड ऑन कोलिशन कर सकता है। ओके, सो दिस इज sp overlap, this is ss overlap and this is pp overlap। ओके, सो तीन टाइप का ओवरलैप हो सकता है। ओके, सो एक है कि ये ओवरलैप जो है ये हेड ऑन कोलिशन हो रहा है, हेड ऑन कोलिशन हो रहा है। जैसे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ऐसा हेड ऑन कोलिशन हो रहा है। सो हेड ऑन कोलिशन होने से वी विल गेट वन टाइप ऑफ बॉन्ड। और अगर साइडवाइज कोलिशन होता है, अगर दो गाड़ी सपोज मान लो कि साइड से टकराए तो देन वी विल गेट अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड। जैसे कि p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल है और दूसरा ये है और एक p ऑर्बिटल। ठीक, सो इसको बोलता है pp, इसको भी बोलता है pp ओवरलैप। लेकिन ये pp ओवरलैप और ये pp ओवरलैप डिफरेंस है, क्योंकि ये है हेड ऑन कोलिशन, हेड ऑन, हेड से हेड टकराया, और लेकिन और ये है साइडवाइज कोलिशन, जैसे साइड से साइड टकराया। सो अगर हेड से हेड टकराता है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। ओके, और अगर साइड से साइड टकराता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। और सिग्मा को हम लोग लिखते हैं ऐसे सिंबल से और पाई को लिखते हैं ऐसा सिंबल से। ओके, सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड पॉसिबल फॉर दिस ऑर्बिटल ओवरलैप। वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड। यहाँ तक पढ़ना, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, और मेरा नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से दोहराऊंगा। आई रिपीट इट अगेन, सो डोंट बी पैनिक, चिंता मत करो। आई एम हियर टू हेल्प यू पीपुल आउट रिगार्डिंग केमिस्ट्री, सो फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न। जितना कि केमिस्ट्री, अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो यू आर फ्री टू आस्क मी अगेन एंड अगेन। सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, आई विल गिव यू द आंसर, आई ट्राई टू गिव यू द आंसर। सो ये है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप एंड द बॉन्ड कमिंग आउट फ्रॉम दिस ऑर्बिटल ओवरलैप। ओके, सो उसी के साथ ये आज का क्लास में समाप्त करने जा रहा हूँ। आई वांट टू एंड अप दिस क्लास। सो ध्यान से पढ़ो, और अगर कुछ कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।